গেলা বলছি কত ধরা পড়ি পড়ে যে কিছু হয় না বলবো মানে আর আমার ছবি বিয়া করলে ওটা দিলাম আপনার আলো মানে সেলিব্রিটি আছে ওতে কারণ ওটাই তো কথা ওই কোন ছুরি ওর দেখো কথা হয়েছে ছুরি আর স্টাইল দেখে পড়ে গেছে কি করবে খবর পেলাম হ্যাঁ কি করলো বেগুন বেচতে গেল বেগুন বেচা হয়ে গেছে এত ঘুরে চলে আসবে বেচা হয়ে গেছে এত তো বাংলা কথা বলছি মেলাও দেখা হলো বেলুনে বেচা হলো তার মানে কি বলো হ্যাঁ বুঝতে পারলে মেলাও দেখা হলো বেগুন বেচা হলো পুকুরে গাদমা হলো স্নান করা হলো আমার বাড়ি চলে যাবে সবাই উল্টা ঘুরে যায় মনে গান লাগে আর যাব না বেগুন তুলিতে ওই মেয়েটার বয়স কত হয় দুদিন ছেলের মা ছেলে হয়নি দুদিন ছেলের মা ছেলে হয়নি তাহলে ও চলে যেতে পারে না না কি হয়েছে কথা হয়েছে চেষ্টা কি করলো কিছু বললো না বিয়া দিল বিয়া দিল না থানা নিয়ে গেছে ডাকলো থানা নিয়ে গেলে তো বিয়া দেওয়া হবে না না হবে এক জুরমানা হবে বিয়া হবে না শাশুড়ি আমার কাছে গেলে গল্প খালি টাকারই আসবে টাকারই গল্প আসবে ছেলেবেলা যদি টাকাটা হয় তাহলে ওদের থেকে টাকা ফেলবে ভুল কথা ছেলেবেলার টাকা যদি হয় ওর এত পয়সা ধরা পড়ে হে ওছনা লাউড়া আছে টাকা থাক কি না থাক যদি ছেলেটা যে যার ওটা বউ ছিল ওর দিমাগ যদি থাকে এর সময় বিয়ে পড়াবো ঠিক আছে তাহলে বিয়ে পড়তে পারবে আর যদি খুব জোর যদি পারতে ছেলে কাছ থেকে যদি খুব জোর যদি পারতে 1 থেকে 2 লাখ টাকা নিতে পারবে আর তার থেকে ভালো পারবে যদি হয় এটা ঘটনা না পকেট জেলের ভাত খিলাও 5 লাখ টাকা নিব আমি বিয়া দিয়ে দেবো আমি তো ওটাই কইছি 500 টাকা 300 টাকা তো পাওয়া যায় ঠিক আছে কিন্তু কত কত ভালো দেখতে গেছে 1.5 লাখ টাকা দিবে তাহলে তোমার একটা সাতালি ঝাড়খান্ড গল্প শুনে শোনো নিজের চোখের ঘটনা সাতালের বিচার তুমি দেখবা না তোমার মাথা ঠুকো ঠুকো মরে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ডাইলট করতে গেছে একটা বাঙালি মুসলিম ছেলে একটা সাতালের মেয়ের সঙ্গে ধরা পড়ে গেছে জঙ্গলে ঠিক আছে তোকে মার মেরে হালকা বেনে দুজনা গাছে বেনে মানে মার সেরকম মারে না হালকা পাতলা মেরে না গাছে 2 টাকা বেনে না গাছে বেনেছে ওদের যেটা মেন মোরাল সে মানে কেসের 5 টাকা বেনেছে আর যেটা কেসের আমরা 500 লোক প্রবল পেছনে আমাদের গাড়ি লেগে আছে এবার আমরাও বিচার দেখছি দাঁড়িয়ে বিচারটা কেমন হলো জানো ওদের যে মোরাল সে আসলো মোরাল বসলো এবার ছেলেটার টাকা পয়সা বলা আছে ছেলেটার মামা এবার ছেলেটার মামা ওখানে ছিল প্রথম জানতে না ছেলেটা বলে কাকা না মামা জানতো না তোমার কথা শুনে হবে নাকি এত গলা লোক সব যাবে আর ভিডিও লাই সবারই ভিডিও হবে এখানে সব ইউটিউব চ্যানেলে ছাড়ছি আমি তো আমাদের মধ্যে এই ছেলেটাকে 5 লাখ টাকা জরিমানা লাগাইলো হ্যাঁ ধরো কও কাকো বেনে দিলে না জেনে জেনে ধরো কাকা মোবাইলটাকে কাকো ওর বাপকে 14000 টাকা দিয়ে দিবে মোয়া বললো ওই ওই জন্য তো গাড়ি কুদে ম্যাডাম কোন ম্যাডাম আসছে পাঁচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি মজা আরে মারে আমি ছবি তো নিয়ে আসি এরকম ভাই আরে বহুত কোন মিটিং হবে হ্যাঁ চলে কোন ম্যাডাম আসছে বুলুটি ধরা পালতে हो না না বেটা চলা যাবে ধরাও বাল চালু করে দাও ওই দিয়ে দিলাম 800 रुपए से लगवा 800 শেষ আছে ওই একদিনই কাওড়া তলা পাস হয়ে যাবে दादा एक बार तो आने वाला पहुंच गए तो फोरमैन लोग किधर आइए आगे फोरमैन लोग आ गए भाई भैया फोरमैन साहब आ जाइए इधर डॉक्टर देगिरी मारा होना फोरमैन
बताई इसको चुप रे क्या है आवाज बंद करो सबका आपस का भी साइलेंस बंद करो स्टॉप सब लोग आइए बैठो नीचे इधर बेटा कोई भी বেশি বকছো কেন কইবে তো কইবে ডিউটি পালন করবে না এমনি পয়সা सबको नमस्ते आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरा आवाज आ रहा है पीछे आ रहा है क्या सबको नमस्ते गुड जोर नहीं ये लाइन में सिर्फ जोर है इधर वाले में कुछ जोर नहीं है ये लोगों ने खाना नहीं खाया शायद नहीं खाया ना सर नमस्ते नमस्ते ऐसे आवाज आनी चाहिए सबको बिना माइक का मेरा आवाज आ रहा है पीछे अभी आज आपको इधर इकट्ठा किया है सब लोगों को हर बार हम लोग आपको सेफ्टी के बारे में सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हैं बराबर है तो आज हमारे साइट के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डोर स्टेप फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे स्कूल ब्लूटूथ कोई इसी को कनेक्ट नहीं करेगा हाँ ये जो प्रोग्राम रखा है आपके लिए है आपके परिवार के लिए रखा है ठीक है जो अपने स्कूल में अपने लेबर कॉलोनी में जो स्कूल चालू किया है वो जो एनजीओ है डोर स्टेप फाउंडेशन उनकी तरफ से ये जो आज का प्रोग्राम रखा है आपके लिए BOCW रजिस्ट्रेशन यानी कि बांधकाम कामगार नोंदणी प्रकल्प जो है आपके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपको चलाया जाता है ये जो स्कीम के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं एक बार उनके लिए सब लोग ताली बजा जोर से ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको दोनों फोटो ले लो फिर से बोल रहा हूँ अभी ये जो प्रोग्राम है आपके लिए रखा है ये जो प्रोग्राम में आपको महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो योजना है जो स्कीम चालू है उसके बारे में आपको जानकारी करके दिया जाता है इसके पहले किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा 1 साल पहले 6 महीना पहले उसका रिन्यू करना पड़ेगा 1 साल हुआ है तो और जिसका नहीं हुआ है उसको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसमें आपका इंश्योरेंस एजुकेशन के लिए शादी के लिए ऐसे बहुत सारी 26 स्कीम है 26 स्कीम योजनाएं हैं इसके बारे में आपको जानकारी करके देने वाले हैं तो वो सब लोगों ने सुन के लेने का है और उसका जो रजिस्ट्रेशन काम चालू होगा तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा मैं सर को बुलाना चाहता हूँ तो जानकारी देंगे सब लोग तालियां जोर से सबको नमस्ते मेरा आवाज आ रहा है आ रहा है ना सबका खाना हुआ अच्छा है इधर कुछ लोग बैठे वो भी इधर आ जाओ सर ने अभी बताया कि हम किस बात के लिए यहाँ इकट्ठा हुए है ना तो वो सब जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूँ सबसे पहले मैं अपनी पहचान करके देता हूँ कि मेरा नाम सचिन बादलगावे है और मैं यहाँ पुणे में रहता हूँ वैसे मैं लातूर का हूँ सब लोगों को पता है लातूर सुना है नाम हाँ सुनाओ कुछ लोगों ने सुना होगा कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा तो पहले मैं अपनी पहचान करके देता हूँ कि इधर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूल है क्या आगे तो स्कूल में जो मैडम वगैरह आते हैं ये दिखे घूरना है वो संस्था का नाम है डोर स्टेप स्कूल उस संस्था की तरफ से हम आज आपके सामने बात करने के लिए आए हम बच्चों को पढ़ाते भी है लेकिन उनके माँ बाप जो है तो उनको ना एक महाराष्ट्र में एक स्कीम है महाराष्ट्र में नहीं अपने राज्य में भी कोई बिहार का होगा कोई उत्तर प्रदेश का होगा झारखंड का होगा छत्तीसगढ़ का होगा है ना या मध्य प्रदेश का होगा हर तरफ ये स्कीम है तो महाराष्ट्र में भी वो स्कीम है उसको हम BOCW बोलते हैं BOCW योजना तो उसके अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में भी उस योजना का फायदा उठाने के लिए हमें क्या कागज पत्र देना पड़ता है उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ पहले मैं आपको मेरी थोड़ी जानकारी देता हूँ कि मैं भी किसी
बड़े मेरे माता पिता भी कुछ बड़े ऑफिसर थे, हाँ, या कोई बड़े खेत वाले थे, ऐसे कुछ नहीं है। मैं भी आपके जैसे ही घर से, मतलब एक गरीब घर से आया हूँ। मेरे माँ बाप भी दूसरों की खेती में जाके काम करते थे। खेती में मजदूर काम करते हैं ना, है ना, वैसे ही मेरी माँ और मेरे पिताजी दूसरों के खेतों में जाके काम करते थे। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है कि उन्होंने जो काम किया वो उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये काम मत करो, क्योंकि क्या होता है खेत में काम करते हैं तो कोई कोई है ना काम करके लेता है, पैसा नहीं देता है ना, ऐसा होता था। वो सब उन्होंने अनुभव लिया है, उनको पता है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा बच्चा मेरा काम नहीं करना चाहिए, उसने थोड़ा बहुत पढ़ लिखा तो उसे कोई अच्छा काम मिलेगा, पुणे जाएगा, मुंबई जाएगा, कहीं जाके उसका भविष्य वो बनाएगा, ऐसे उन्होंने सोचा और मुझे उन्होंने पढ़ाया। इसलिए मैं आज आपके साथ में नहीं लेकिन आपके सामने खड़ा हूँ। पहले ये ध्यान में लो कि अपने बच्चे पढ़ने चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उनको वही काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप थोड़ा बहुत उनको पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य ये नहीं अलग रहेगा। कभी कभी ये सर की जगह पे आपके बच्चे आ सकते हैं कल जाके, या मेरी जगह पे, मैडम की जगह पे आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी से अपने में बदलाव करने का सीखो, काम करो। काम करना, काम करके पैसा कमाना, वो पैसा बहुत देर तक टिकता है, चलता है, लेकिन जो गलत रास्ते से आता है वो टिकता नहीं। ऐसे हर एक के माँ बाप ने सिखाया होगा, सिखाया ना, सिखाया। तो काम ईमानदारी से करने का, और काम को कभी शर्म नहीं करने का, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का। बच्चा पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उसको आना चाहिए, ठीक है। तो ये योजना में भी ये फायदा है कि अगर हम जब हमारे बच्चों के लिए ये फॉर्म भरते हैं, बीओसीडब्ल्यू ऑफिसर ने आपको बताया, तो वो फॉर्म में क्या करना पड़ता है, आप कहीं के भी हो, ऐसा कुछ नहीं। ये योजना महाराष्ट्र के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एमपी का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, हम सब भारतीय है ना, हाँ, भारतीय ना, तो वो योजना है सब भारतीय लोगों के लिए है। तो आप यहाँ इस साइड पे अगर काम करते हो तो आपको आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स, एक कलर जेरॉक्स, आपका एक छोटा फोटो, अगर शादी हुई है तो आपके बीवी का आधार कार्ड का जेरॉक्स, और बच्चे हैं तो बच्चों का आधार कार्ड का जेरॉक्स, ये यहाँ सर के पास जमा करना है। उसके मतलब उसके आधार से हम आपका वो फॉर्म भर सकते हैं। वो फॉर्म भरते वक्त हम आपको फोन करेंगे, एक ओटीपी मांगेंगे कि ये हमको ओटीपी बता दो, आपका फॉर्म भर जाएगा। जिस दिन आपको सर ने बोला है कि आपको ओटीपी के लिए फोन आएगा, तभी ओटीपी बताना है, हाँ, नहीं तो कोई भी कुछ फोन करेगा ओटीपी बताते बैठना नहीं है, हाँ। तो हम बताएंगे, सर बताएंगे, तभी ओटीपी बताना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपका एक आधार कार्ड का कलर जेरॉक्स, आपका सिर्फ कलर जेरॉक्स जिसका फॉर्म भरना है उसका, साथ में अगर शादी हुई तो बीवी का, तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया तो चलेगा, और बच्चों का आधार कार्ड और एक छोटा फोटो जमा करना है। ये यहाँ जमा करने के बाद हम आपका बीओसीडब्ल्यू का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसकी क्या बेनिफिट है, किसी को पता है क्या? आज तक किसी ने फॉर्म भरा है? नहीं भरा है? किसी ने नहीं भरा? हाँ, ठीक है। उसमें बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, आज अगर मैंने मेरा फॉर्म भरा, कल जाके मुझे काम करते वक्त कुछ बड़ी दिक्कत आ गई, मतलब मैं ऊपर से गिर गया और मैं अपाहिज हो गया, मेरी टांग टूटी, हाथ टूटा, पैर टूटा, और मैं परमानेंटली एक पैर से टूट गया, है ना, तो मेरे फैमिली के लिए 2 लाख का बीमा मिलता है। ऐसा कुछ होता है तो वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है, वो अगर हम फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे कि ये काम करते वक्त मैं अपाहिज हो गया हूँ, तो मुझे 2 लाख का महाराष्ट्र सरकार मदद करता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मैंने पहले ही बोला है, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है ना, सबके लिए है। साथ में अगर काम करते वक्त मुझे दिक्कत आई, मैं ऊपर से गिरा या कुछ हुआ मुझे और मेरी डेथ हो गई, मैं मर गया, तो मेरे पीछे जो मेरी फैमिली है, माँ बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, उनको 5 लाख तक का फायदा मिलता है। वो सरकार उनको पैसा देता है। बीमा सुना है ना, 5 लाख तक का बीमा है। साथ में अगर अपने यहाँ कोई बंदा है, ठीक है, उसका शादी नहीं हुआ है और उसको शादी करना है, हा? तो उसको शादी करने के लिए 30,000 तक का पैसा सरकार देता है।
ऐसा सुना है क्या कभी कोई पैसा देता है? ऐसा पहली बार तो इस योजना के अंतर्गत मैंने कहा योजना है सबके पास दिए है, आपको चाहिए तो देख सकते हो। अभी सब बड़े मोबाइल यूज करते हैं ना, आपको 100 में से एक कम से कम एक मिलेगा जिसके पास छोटा मोबाइल है। जैसे ये मोबाइल तो सब चलाते हैं ना। आज छोटा 2-3 साल का भी बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल देखो, वो आपसे वो अच्छा चला के दिखाएगा। मतलब मोबाइल चलाना बड़ी बात नहीं हो गई है। और मोबाइल पे भी आप देख सकते हो कि योजना कितना फायदा देती है। मतलब एक का शादी करने से लेकिन उसके बच्चों को पढ़ाना बड़ा करने तक की योजना ये फायदा देती है। मतलब किसी भाई का अपनी शादी नहीं हुआ है तो उसको शादी करने के लिए भी सरकार 30,000 रुपए मदद देती है। कल जाके उसकी शादी हुई, फिर क्या होता है, बच्चे होते हैं ना, तो जिसकी शादी हाँ मिलेगा। ये ऐसा है, वो हम दे देंगे आपको चाहिए तो। हाँ अपने जो बच्चों का स्कूल है ना वहाँ पे भी लगाया है, और आपको चाहिए तो दे देंगे आपको, उसमें सब लिखा है। हाँ तो अगर शादी होने के बाद जब अपनी बीवी को बच्चा वगैरह होता है तो डिलीवरी के लिए भी ये सरकार पैसा देता है, ये योजना के अंतर्गत, है ना। तो अगर ठीक है डिलीवरी के लिए पैसा मिलता है, कल जाके बच्चे बड़े होते हैं और उनको स्कूल में डालना है तो उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी पैसा दिया जाता है। अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता होगा तो पहली से लेकर 7वीं तक हर साल उसको शिष्यवृत्ति पता है आपको, स्कॉलरशिप सुना है ना? हाँ सुना। स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर पहली से लेकर 7वीं तक बच्चा है तो उसको 2,500 मिलते हैं। और उसके आगे होता है बच्चा, मतलब 8वीं से लेकर 10वीं तक तो उसको 5,000 मिलते हैं। और उसके आगे बच्चे, मतलब 10वीं के आगे बच्चे होंगे तो 10,000 रुपए मिलते हैं। बच्चे आपके बच्चे बड़े होंगे आगे चलेंगे और तो 20,000, 50,000, 90,000 तक के स्कॉलरशिप इस योजना से मिलते हैं। इतना बेनिफिट आपके बच्चों के लिए, आपके लिए है। लेकिन ये कब मिलेगा? अगर आप फॉर्म भरेंगे तो। आप कितने साल, आप अब यहाँ से बहुत लोग होंगे जो 5 साल से काम कर रहे, 10 साल से ये काम कर रहे और उन्होंने फॉर्म भरा नहीं होगा, है ना? भरा है क्या? कुछ लोगों ने नहीं भरा। हर साइट पे जाओगे तो ये फॉर्म भरेगा और ये फॉर्म हर साल रिन्यूअल किया जाता है। अगर 3 साल आप लगातार ये फॉर्म भरोगे तो आपको हर महीने के लिए 1,000 का पेंशन चालू हो जाएगा। आप इधर नहीं रहोगे, 3 साल इधर महाराष्ट्र में काम किया, 3 साल फॉर्म कंटिन्यू भर दिया, ये साल भरा, अगले साल भरा, उसके साल अगले साल भरा, एक बार आपको पेंशन चालू हो गया। आप बिहार में रहो, यूपी में रहो या एमपी में रहो, वो सरकार की तरफ से हर साल आएगा, क्योंकि आप इधर आते हो, है ना। अभी मैंने बोला ना बहुत बंदे अपने बाहर के होंगे, लेकिन इतने अच्छे घर, मकान, फ्लैट, ये सब आप हमारे लिए बना के जा रहे हो ना। यहाँ रहने वाला कोई अपना ही भाई होगा, यूपी का होगा, एमपी का होगा, महाराष्ट्र का होगा, लेकिन ये सब काम करने के लिए अपना, आप बोलते ना अच्छे दिन है ना, अच्छे दिन ये आपके वजह से आते हैं, हम हमारे वजह से नहीं आते, है ना। खेत में आपने कभी खेत में काम किया है क्या? किया। जिस दिन वो धान निकालने का होता है क्या, है ना, होता है। उस दिन सब लोग आते हैं, सब लोग। मालिक उस दिन पक्का आता है, कितनी बोरी हुई। लेकिन जो खेत में काम करता है वही मालिक होता है, सच है ना। आपने अगर अच्छा किया इसलिए तो हम यहाँ पे है, मैं हूँ, सर हूँ, तो आप लोगों का काम करने का है, आप करते भी हो। लेकिन ये योजना का फायदा ले लो और ये फायदे, योजना का फायदा आपको मतलब लेना ही है। अगर लेते हो तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इतना जो मैंने बोला है कि काम करते वक्त कुछ हुआ, शादी करने को मदद चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए, तो ये फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप फॉर्म भरोगे। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो तो ये योजना का फायदा आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मैं बाहर का हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं के भी हो, भारत के हो, भारतीय नागरिक हो, आप पहले आप भर सकते हो। और दूसरी, कुछ लोग बोलते हैं हाँ नहीं, हम भरने के बाद ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। आप ऑनलाइन खुद नहीं भर पाओगे, वो थोड़ी प्रोसेस अलग है ना, प्रोसेस अलग है। मतलब करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने को कुछ दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है, चलो करते हो तो आप भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए 90 डेज सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, जो हमारे सर भी दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते, है ना। वो एक फॉर्म होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
तो हम कहाँ थे भूल गए? हाँ खेत में थे। वही देख रहा था, याद है क्या? भूल गए? हाँ, तो चलो गाँव की याद आई होगी खेत की बात। तो खेत में थे हम, है ना? तो हम जब काम करते तभी हमको ये होता है ना, फायदा मिलता है। तो हमको सबसे पहले ये फॉर्म भरना है। सर आपको तारीख बताएंगे, उस दिन हमारे मैडम सर मैं खुद यहाँ आऊँगा, हम फॉर्म भरेंगे और फिर हम आपको ऑनलाइन वो प्रोसेस कर लेंगे। और मुझे आप सभी भाई को विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप वो फॉर्म भर ही लो। आप यहाँ रहो कहीं रहो, वहाँ वो फॉर्म भरना ही जरूरी है, जिसकी वजह से आपको फायदा मिल सकता है। हाँ, और कुछ लोगों को अभी हमने दूसरी साइड पे ये फॉर्म भरने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड को लिंक नहीं है, तो मैं नहीं भर पाऊंगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो आप अभी जो फोन चला रहे हो, जो मोबाइल चला रहे हो, उसका नंबर उस फॉर्म को देना है, बाकी कुछ बदल नहीं करने का। और मेरा मोबाइल आधार कार्ड को लिंक है या नहीं है, जरूरत नहीं। हम जो अभी मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल नंबर वही नंबर आप दे सकते हो फॉर्म भरने के लिए। बस इतना ही करना है। और कुछ लोगों को कुछ प्रश्न है? डेट जो कैंप है ना, आपको पहले बताया जाएगा 2 दिन पहले, ये आज कैंप होने वाला है 2 दिन के बाद। तब आपको टीबीटी में सुबह जो अपना टीबीटी होता है ना, उसमें आपको जानकारी करके दिया जाएगी वो फॉर्म भरने वाले 2 दिन के बाद आने वाले हैं। तब तक आपका सब जो डॉक्यूमेंट सर ने जो बताया है, सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखो। आपके फैमिली का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, ये सब अपडेट होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए वो। तो सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा होने के बाद हम लोग अगले हफ्ते में कैंप लगाने की 100% कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट होना जरूरी है उसमें। सर ने बोला है कि जब रहेगा 2 दिन आपको पहले बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी इस योजना का क्या क्या फायदा है आप सब लोगों को पता चला? ठीक है, क्या क्या फायदा है कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो, एक एक कोई भी हाथ ऊपर कर सकता है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। कौन बताएगा? एक एक बताओ, सब मत बताओ। हाँ, कोई भी एक एक बताओ, किसी किसी को एक क्या फायदा है? स्कॉलरशिप मिलेगा और शादी के लिए पैसा मिलेगा। हाँ बताओ काका। किसी पैसा 1000 টাকা মাঝে ভরতে क्या क्या मिलेगा बताओ? एक मिनट, ये भाई साहब बता रहे हैं। हाँ, 2 लाख का बीमा बराबर है। और कोई बताएगा? थपड़ा फान लगा हुआ है। रुक सब बताएगा। इसका शादी नहीं होगा, वो शादी करेगा। देखिए घूमगा मैं। हाँ, आजा। मुंडा वाला गोरा गोरा शादी नहीं होगा, तुम्हारा शादी करा देगा यार इधर से यार। जैसे किसी को शादी करना 3 महीने बाद अगर शादी हुआ, उसको पैसे कैसे मिले? यहाँ पे सबको सारा लोग बगैर शादी का दिख रहा है, सबको वही प्रश्न आ रहा है, शादी के बाद पैसा मिलना चाहिए। सर बताएंगे, 1 मिनट। अरे भाई रे भाई का हमने शादी 3 महीने बाद करो, 6 महीने बाद करो। हमने इधर फॉर्म भरा, उसका फॉर्म उधर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसका एक बार उधर हम बुलाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, मतलब उधर अंगूठा लिया जाता है कि ये सलमान खान यही है बोल के, है ना? तो इसका एक बार कंफर्म हुआ कि सलमान खान यही है, तो सलमान खान जब भी शादी करेगा, वो पता नहीं उसका भाई मुझे वो करेगा कि नहीं, लेकिन ये भाई का अगर जिस दिन शादी करेगा, उसके शादी के बाद उसका शादी का वो जो फोटो रहता है ना, दोनों पति पत्नी का फोटो, उसका एक मैरिज सर्टिफिकेट रहता है, ये दोनों कागज वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, तो उसका वो हो जाएगा। और उसका इधर जाकर करना है ऐसा कुछ नहीं, उसके गांव में भी बैठ कर वो कर सकता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन इधर करना पड़ेगा, वो जो हम करेंगे। हाँ, और इन्होंने बोला 2 लाख का बीमा है, और
शादी करने के बाद पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। मरने वाला जो गाड़ी है तो मिलेगा 5 लाख, कैसे देखेगा? मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ जाके तो तुम दोगे मरने के बाद। देखिए, इसको थोड़ा सीरियसली लेने का है। सब लोग शादी 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 चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी है, इसमें बहुत सारे हमको बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं जिनके लड़के या लड़कियां हैं घर में, जिनकी शादी की भी उम्र हो चुकी है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट दे रहा है। हमारा लड़के का या लड़की का शादी हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 51,000 रुपए 51,000 गवर्नमेंट देती है। शादी के लिए भी सर ने बताया कि वह आपको मैरिज का एक फोटो चाहिए प्रूफ के लिए और मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए जो रजिस्टर ऑफिस में निकलता है गांव में, ठीक है। वो सर्टिफिकेट और फोटो जब तक नहीं दोगे नहीं मिलेगा पैसा। गवर्नमेंट अगर आपको इस हाथ से दे रहा है तो उस हाथ से कागज भी दे रहा है दूसरे हाथ से, ऐसा ही किसी को नहीं दे सकता है। हम बेवकूफ नहीं बना सकते गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सब बात समझ के लीजिए। हमारा जो सेफ्टी टीम है वो हर रोज आपको टूल बॉक्स में बताएगा। रजिस्ट्रेशन हम ये 8-10 दिन में चालू करेंगे। आपको जो आधार कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर वगैरह मांगा गया है वो आप सब एविडेंस जमा करके रखो और हो सके तो आधार कार्ड के पीछे आपका मोबाइल नंबर लिख के रखो। मोबाइल नंबर में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो आपका नंबर रहने वाला है यहाँ से आगे वही नंबर दो, नहीं तो कोई लोग बोलते हैं यार मेरे पास 2-3 नंबर है, कोई तो एक नंबर दे देता है, वो भूल जाता है। और सबसे बड़ी बात है ओटीपी का। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आपको ओटीपी प्राप्त होती है तो वो ओटीपी आपको सेफ्टी ऑफिस में आके सर को बताने का है, माने सर को, ठीक है। वो ओटीपी के लिंक में कुछ भी आपको क्लिक नहीं करने का है। आजकल बहुत सारा फ्रॉड करता है, कोई भी ओटीपी भेजता है, ये लिंक ओपन करो, वो लिंक ओपन करो, ऐसा कुछ भी नहीं करने का है। आपको जैसे ऊपर में POW लिखा हुआ मैसेज मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन का ओटीपी उसमें दिख जाएगा, तो वो लेके आपको आने का है। उस पर कुछ भी क्लिक नहीं करने का है। ओटीपी का मैसेज सिर्फ सेफ्टी ऑफिस में आके आपको दिखाने का है। वो ओटीपी डालेंगे, आगे का प्रोसेस वो साहब लोग करेंगे, आपको नहीं करने का है। और जैसा कि सर ने बताया, जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है उनका रिन्यूअल ही होगा, उनका नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका आधार नंबर उसमें अपलोड हुआ रहता है। तो कोई आदमी अगर हमको आके झूठ बोल रहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन पहले किया नहीं है, हम पहली बार कर रहे हैं, वो उसका उधर पता खुल जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड तो 1, 2, 3 ऐसा कुछ नहीं बना सकते हम। आधार कार्ड हमारा एक आदमी का ही नहीं बनता है। तो इधर हमसे आगे झूठ बात करने का। आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है, आपने रिन्यू नहीं किया है, तो वो प्रोसेस अलग है, वो भी करेंगे हम लोग। लेकिन झूठ नहीं बोलेगा कि सर हमने पहले किया ही नहीं। जो नया आदमी है उसका ही वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सब लेता है। और हर साल में आपको ये रिन्यू करने का है। जैसा कि सर ने बताया, ये नियम मुझे भी नहीं मालूम था। 3 साल अगर हम हर साल उसको रिन्यू कर रहे हैं तो हमको पेंशन चालू हो जाएगा। 1,000 रुपए गाँव में बहुत है हमको, उसमें दवा पानी निकल जाता है बुढ़ापे का। गवर्नमेंट पेंशन प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखिए। हमको बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हम लोगों को खाली एक ही मालूम है, ठेका लो ठोको, ठेका लो ठोको, वही मालूम है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो आपको मेडिकल के लिए है, अगर भगवान ना करे आपको कुछ होता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। आपके जाने के बाद भी फैमिली को पैसा मिलता है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए। हम लोग ऐसे हवा में काम नहीं कर रहा है। आपके पीछे, हमारे पीछे गवर्नमेंट भी है जो हमारे पीछे पैसा लगा रहा है, ठीक है। ताली मार रहे थे, ताली बजी नहीं है। ताली तो बजेगा, इतना आदमी माफ करोगे क्या मुझे? माफ करोगे मुझे? माफ करोगे? बिल्कुल, थैंक यू। थोड़ा लेट हुआ आने में, और ये ऊपर नीचे करते रहे हम लोग। ऑटो वाले ने भी साइड में तोड़ दिया, थोड़ी दिक्कत हुई आने में।
आपका सॉरी, फिर से सॉरी। अभी यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शायद आपका ये 2 बजे शुरू होगा ये सेशन। इसमें आपको जो लेबर कार्ड है पेटी वाला, बक्से वाला, उसके बारे में आपको जानकारी दी है, बिल्कुल ना? किसी के अगर डाउट्स है तो लास्ट में हम बता देंगे कि आपका क्या डाउट्स है, ठीक है? अभी जो आपको कितने लोगों का जो POCW कार्ड होता है, लेबर कार्ड होता है, कितने लोगों का बना हुआ है, जरा हाथ ऊपर कर सकते हो? लेबर कार्ड कितने लोगों का बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हाथ नीचे ले लो। जो बाकी के, हाँ, जो बाकी के जो मेरे भाई हैं उनका नहीं बना है, बिल्कुल ना? इससे पहले बनाया हुआ था, बनाया हुआ था या नहीं? एक आवाज में यस और नो। वेरी गुड, थैंक यू। तो फिर आपको सर ने अभी जानकारी दी होगी, आपका आधार कार्ड देना है, बिल्कुल, एक फोटो देना है, बिल्कुल, और बैंक का पासबुक अगर आपके पास है तो वो देना है, बिल्कुल ना? ये चीजें आप सेफ्टी ऑफिसर आपके या कोई आपको टीम रखा होगा, उस टीम के पास आपको देना है, ठीक है? इसके आपको जो बेनिफिट्स है, फायदे हैं, आपको सर ने बताए होंगे, बिल्कुल ना? ये पहले वाला फायदा कौन बताएगा? ये देखो, अगर आप बोलोगे नहीं ना तो मैं चुप बैठ जाऊंगा। आप बोलोगे, मुझसे बात करोगे तब मैं बात करूंगा। आपको जो चीजें बताई है वो समझ में आई है तो मुझे बताना है, तो मैं आगे वाले सेशन आगे कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल ना? ठीक है, तो क्या क्या लगेगा? पहले वाला कागजात क्या है? आधार कार्ड, बिल्कुल। दूसरा वाला क्या है? फोटो, छोटा वाला, इतना वाला, पासपोर्ट वाला। तीसरा वाला क्या है? अकाउंट नंबर, पासबुक, ओके, इतना काफी है, ठीक है? अगर आपने पहली किसी भी साइट में इसका लाभ लिया हुआ है, बेनिफिट लिया हुआ है, फायदा लिया हुआ है, तो आपके सेफ्टी ऑफिस को बताना कि सर मैंने पहले वाला एक फॉर्म भरा था, अभी वो रिन्यूअल नहीं किया मैंने। अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया है तो उसका फायदा आप नहीं ले सकते। कितने लाख का इंश्योरेंस होता है उसमें, बता दो? इंश्योरेंस कितने लाख का होता है आपके कार का? 2 लाख 2 लाख। पीछे से कोई आवाज ही नहीं आ रही भाई साहब। 2 लाख और 10 5 लाख जिन्होंने बोला है वो सही है, थैंक यू। 2 लाख से 5 लाख का, बिल्कुल, थैंक यू। उसके बाद आपको पता है जब मेरी शादी होती है ना, मेरी शादी के लिए पैसा मिलता है, हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। अभी मुझे बच्चा हुआ है, एक बच्चा हुआ, ठीक है? डिलीवरी होती है ना, क्या बोलते हैं आप? डिलीवरी। उसका जो क्लेम होता है उसका कितना पैसा मिलता है? शादी वाली जो ताकि की नहीं है उसको कितना होता है? 15,000, बोलो 21,000। ठीक है, ठीक है, सॉरी। उसके लिए अगर अभी आपको बच्चा हुआ है तो अभी जो डिलीवरी कितनी टाइप की होती है, कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार, बिल्कुल। एक पहला वाला होता है, सादा वाला होता है, नॉर्मल वाला, बिल्कुल सीजर वाला, ठीक है? तो ये जो सादा वाला होता है उसको आपको मिलता है 15,000, कितना? और जो टाके वाला होता है, सीजर वाला, उसको मिलता है आपको 20,000, ठीक है क्या? ये क्लियर हुआ? अभी 15 और 20, ठीक है? और एक बात पूछनी थी मुझे, मानो मैं यहाँ पे मैं कामगार हूँ, आपके जैसा श्रमिक भाई हूँ, और यहाँ से मैं गिर गया 2 माले से, मैं अभी ये पूरा मेरा जो पाँव है, दोनों पाँव कट गए, तो मुझे कितने लाख का बीमा मिलेगा? अरे वाह, बहुत होशियार है आप लोग, थैंक यू। दूसरी बात यह है, अगर मेरी डेथ हो गई, मानो डेथ हो गई, तो मुझे इसका फायदा मिलेगा क्या? 5 लाख का, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, ठीक है। और इसमें और एक जोड़ना चाहता हूँ,
बिटिया कितने लोगों का है? बिटिया लड़कियां लड़कियां कितने लोगों का है? हाथ ऊपर करो ना भाई साहब, मुझे भी रहे। हाँ, तो अगर उसकी उम्र 18 साल पूरी है, कितनी? 18 साल पूरी है, तो उनकी शादी के लिए आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? वेरी गुड। दूसरी शादी है दूसरी लड़की की, उसके लिए वो 30,000 है। 31,000 मेरा करा हुआ है ये। पहली वाली शादी के लिए এটা मेरे कोरा আছে তো 51,000, दूसरी वाली को 31,000। ठीक है, ये मेरा करा हुआ है। हाँ तो ऐसे तुम अपडेट करते हो, अपडेट महत्वपूर्ण एक जानकारी देने वाला ये हूं। तो करा हुआ है मेरा। आप जब ये तो मेरा करा हुआ है। आपको लगता है आपके बच्चे के लिए काम करना चाहिए, मुझे लगता है अपडेट করে नहीं लगता है ना, बिल्कुल ना। ये पसीने वाली जिंदगी है हमारी, सच ना। तो हम चाहते हैं, आपको लगता है आपकी एक कोई भी एक हाथ उठा सकते हैं लास्ट में? ये तो ई श्रम कार्ड আছে। एक लास्ट में एक हाथ उठा, कोई तो हाथ उठा भाई साहब। आपकी पढ़ाई कितनी हुई भाई साहब? 8 आपकी पढ़ाई 10 हुई, 10 मैट्रिक में आपकी पढ़ाई कितनी हुई? पढ़ाई पढ़ाई 10वीं 8वीं। ये देखो, ये बड़ा अच्छा जवाब है। मुझे इस जवाब की तलाश थी, लेकिन 2 बंदों में से ही मिल गई। इसमें क्या होता है, हमारी जो परिस्थितियों की है, हमारे घर होता है, वो बहुत ज्यादा पैसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है। खेती में बिकेगा तब हम खाएंगे। अगर हम यहाँ पे आएंगे 1,000-2,000 किलोमीटर, तो ही हम पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल ना। तो अभी आपको सरकार ने क्या किया है, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी आपके जैसे ना हो, आपके बच्चे भी आपके जैसे ना हो, इसलिए सरकार क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है। क्या देती है? स्कॉलरशिप। पता है स्कॉलरशिप क्या होता है? क्या होता है स्कॉलरशिप? क्या होता है ये स्कॉलरशिप? ये होती है आपके बच्चों की जो फीस होती है ना, ये फीस के रूप में आपको ये मदद करते हैं ये लोग। कौन करता है? ये वाला आपने बता दिया ना, लेबर कार्ड वाला, उसका एक बोर्ड है। क्या है? बोर्ड है। ये बोर्ड आपका बना हुआ है, हमारा नहीं है। हम आपके जैसे श्रमिक भाई, कामगार भाई नहीं है, तो हमारा ये बोर्ड है क्या? नहीं। उस बोर्ड पर किसका हक है? आपका। जो मजदूर है उनका ही हक उस बोर्ड पर है, बिल्कुल ना। तो उसी बोर्ड के पास आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी बच्चा बच्ची दोनों, लड़का लड़की, पहली से मतलब फर्स्ट से 7 तक अगर पढ़ाई करते हैं, तो उनको कितना देती है सरकार? बोला है क्या? पता है क्या? हाँ, 2,500, 2,500, बिल्कुल सही। 2,500 उनको मिलता है। आपका लड़की या लड़की दोनों में से कोई भी 8, 9, 10 में पढ़ रहा है, तो उनको कितना मिलता है? 5,000, बिल्कुल सही। उसके बाद 10, 11, 12 कितना मिलना चाहिए? 10,000। उसके बाद एक सादा होता है ना, मतलब उसको आपका बीए बोलते हैं ना, बीए को कितना मिलना चाहिए? नहीं, सॉरी, बीए को आपको मिलेगा खाली 20,000। वो कॉमर्स में हो, कॉमर्स होगा, आर्ट्स होगा या साइंस होगा, उसको कितना मिलेगा? आपको 20,000 ही मिलेगा। लेकिन अभी ये जो साहब लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनके जैसे आप इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनना है आपके बच्चों को, पढ़ाना है, तो आपको 60,000 रुपए एक साल का देंगे। कितना हजार? 60,000। और 60 इतना आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, कुछ किताबें लगते हैं क्या बच्चों को पढ़ने के लिए? इंजीनियरिंग के लिए किताबें लगते हैं और उसका 20,000 देते हैं। कितना? 20,000। 60 और 20, 1 लाख। कितना हुआ? 80। ये हुआ आपका 80,000 एक साल में एक बच्चे के लिए। कौन? सरकार देती है। डॉक्टर है कोई यहाँ पे आपकी पहचान वाला? नहीं ना, बीच में छोड़ा वाला नहीं है कोई यहाँ पे। अगर डॉक्टर बनना है किसी को, तो डॉक्टर के लिए आपको 1 लाख मिलता है एक साल के लिए। कितना?
और दूसरी बात, अगर उसके बुक्स चाहिए आपको, कुछ जर्नल वगैरह होते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो चीजें चाहिए वो आपको 20,000 का मिलता है। कितना टोटल कितना हुआ? 1,20,000। यार आप सच में अकाउंट में बहुत क्लियर हो लोग, छोड़ोगे नहीं पैसा किसी से, सच में ना, नहीं छोड़ना है, आपके हक का है, बिल्कुल। हाँ, अभी इतना समझ में आया यहाँ पे। अगर आपकी शादी हो गई, सर की शादी हो गई, सर की शादी हो गई, सर की जो मैडम है, बीवी है, वाइफ है, उनको अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग। उनको वाइफ को पैसा मिलेगा क्या? मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इनके नाम का क्या रहेगा? लेबर कार्ड रहेगा सर के नाम का XYZ, और इनकी ये बीवी है, उनका आधार कार्ड वहां पे हम नॉमिनी करके जोड़ेंगे, तो ये भी ये फायदा ले सकते हैं, बिल्कुल। अभी ये पूरा आपका फैमिली का यहाँ पे पैसे का हिसाब खत्म, कार्ड खत्म, PSW आपका खत्म। लेबर कार्ड का कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो कुछ पैम्पलेट्स मैंने यहाँ पे हाँ पैम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे शायद, तो उस पर हमारा नंबर भी है। अगर नंबर नहीं है तो आप आपके सेफ्टी ऑफिसर है, उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ आपका पहला वाला स्कीम। दूसरा वाला, कितने लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ? ई श्रम कार्ड এটা বানা আছে আমার তো। ई श्रम कार्ड এটাই बनবে। ये देखो ये मेरा बना हुआ है। ई श्रम कार्ड बना हुआ है, ई श्रम कार्ड जो सरकार ने वहाँ पर हाँ, तो अभी एक काम करो, कितने लोगों का है तो बस 15-20, ठीक है। इन सब लोगों का यहाँ पे सर और मैडम की मदद से हम एक कैंप लगाएंगे ई श्रम कार्ड का। पहला क्या होगा? लेबर कार्ड का होगा, उसके बाद होगा ई श्रम कार्ड का। ये दोनों कैंप आपकी साइट पे लगेंगे, ठीक है। अगर आयुष्मान कार्ड भी बनाना है तो ये भी इसके बाद उसका कैंप लग जाएगा, लेकिन ई श्रम कार्ड के लिए आपको आपका ई श्रम कार्ड बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है? मेरा आईडी कार्ड है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कब से काम करता हूँ, ये सब इसके ऊपर लिखा होता है। आपके पास कुछ आईडी कार्ड है क्या? दिखाओ, नहीं है ना, बिल्कुल। ये आपकी क्या बन जाएगी? ये पहचान बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? पहचान बन जाएगा, बिल्कुल ना। हाँ, तो फिर ये हर एक के पास होना चाहिए, तभी आपका पहचान कार्ड बन जाएगा। आप ये नाम के वर्कर हो, आप कारपेंटर हो, आप सुतार हो, आप ऐसे हो, कुछ काम करते हो, ये आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा आपको पता है क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा, बिल्कुल। दूसरी चीज फोटो। अरे फोटो नहीं लेंगे हम, आधार कार्ड से ले लेंगे। आपका आधार कार्ड को जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल चाहिए आपके पास। दूसरी बात, आपका आधार कार्ड चाहिए। तीसरी बात, अगर आप पैसा चाहते हो थोड़ा तो आपको बैंक खाता उसको जोड़ना जरूरी है, बिल्कुल ना। ये 3 चीजें आपके पास है तो आपका ई श्रम कार्ड 5 मिनट में एक ई श्रम कार्ड बन जाता है। कितने मिनट में? 5 मिनट। लिंक का मेरा आधार कार्ड सर मोबाइल नंबर में जोड़ दो सर। एक माला थैंक यू। अभी मिथिलेश जी ने अनेक सवाल पूछा सर। मेरा पहला वाला जो ई श्रम कार्ड बना हुआ था, लेकिन कुछ बैंक के लिए पैसों के लिए कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा। पैसा आपको सरकार कब देगी पता है क्या? जब कोरोना जैसा आएगा ना, कोरोना जब ऐसे कोई सिचुएशन आएगा, परिस्थिति आएगी, ऐसा कुछ होगा पैंडेमिक टाइप, तब ही आपको पैसा सरकार देगी। क्यों? आपके हाथ में कोई काम नहीं है, तो आपका घर भी चलना चाहिए ना, खाना पीना होना चाहिए, इसके लिए सरकार आपको मदद करती है। लेकिन आपका मोबाइल में होता है, सबके पास ऐसा बड़ा वाला मोबाइल होता है, इसमें आता है ई श्रम कार्ड पर 10,000, ई श्रम कार्ड पर 3,000। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सब क्या होता है? झूठा होता है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो कोई ना कोई OTP मांगेगा आपसे, वो ऑनलाइन वाला,
और आपके खाते में अगर पैसा है तो खाली हो जाए। ऐसा किसी को नहीं करना है मेरे